کون تھے وہ شروعاتی مسلم جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے پیچھے آخر کیا کارن تھا؟ نبی کی زندگی بیان کرتی اس سیریز کا یہ 7واں ایپیسوڈ ہے، جہاں محمد اب اپنے بچپن کے دکھوں سے نکل کر ایک نبی بننے کی راہ پر چل پڑے تھے۔ دماغی بیماری کی وجہ سے دکھنے والی عجیب چیزیں اب فرشتے کا روپ لے چکی تھیں، اور محمد اب اپنے ہر وقت کے ڈر کے ساتھ ساتھ اپنے شروعاتی اللہ یعنی ورقہ بن نوفال کی موت کے صدمے سے بھی باہر آ چکے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کیسے محمد نے اپنے سب سے پہلے فالوورز بنائے، اور آخر کیا وجہ تھی ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی۔ تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک، اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ دا محمد، جس میں اب تک کے پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے یہ جانا کہ کس طرح خدیجہ کے بار بار کہنے پر حضرت محمد نے آخرکار یہ بات ایکسیپٹ کر ہی لی تھی کہ ہاں اب وہ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر خدیجہ کی مدد سے محمد نے اپنے اس نئے مذہب کو مکہ میں پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ 40 سال کی عمر میں خود کو نبی ڈکلیئر کرنے کے بعد محمد نے نبوت کے شروعاتی 3 سالوں تک خفیہ طور سے اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کیا، اور پھر ان 3 سالوں کے بعد انہوں نے اعلانیہ اپنی نبوت کو سب کے سامنے ظاہر کیا تھا اور کھل کر اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ نے یہ کام انجام دیا۔ اسلام کی دعوت۔ آخرکار اپنی زندگی کے 40 سال برباد کرنے کے بعد حضرت محمد نے خود کو نبی چن لیا تھا، مگر خود کو خدا کا بھیجا ہوا نبی چن لینے کے بعد بھی محمد کا اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جی ہاں، نبوت کے بعد محمد اب خود تو نبی بن چکے تھے، اور یہ باقیوں سے بھی امید رکھتے تھے کہ نہ کیول وہ لوگ بھی انہیں نبی مان لیں بلکہ اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ کر ان کا مذہب ایکسیپٹ کر لیں۔ محمد لوگوں کو ان کے مذہب سے بہکانا بھی چاہتے تھے، اور ان کے پاس اس کے بدلے میں انہیں دینے کے لیے کچھ خاص بھی نہیں تھا۔ اس لیے محمد نے سہارا لیا عرب کے صرف ایک پارٹیکولر سیکٹ کا، جہاں اب کانسیپٹ آتا ہے مورتیوں کے بجائے صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا۔ حالانکہ یہ طریقہ بھی عرب کے یہودی لوگ پہلے سے ہی فالو کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عرب میں بہت سے ایسے لوگ پیگنز کے ایسے فرقوں سے تعلق رکھتے تھے جو صرف ایک خدا کی ہی عبادت کرتے تھے۔ خدیجہ پیگنز کے اسی حنافی سیکٹ سے تعلق رکھتی تھی، جہاں مورتیوں کی کوئی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ اب کیونکہ خدیجہ نے ہی محمد کو انفلوئنس کیا تھا اور نبی بننے پر مجبور کیا تھا، اس لیے اس کے بنائے گئے اس نئے مذہب میں بھی صرف ایک ہی خدا کی عبادت کا کانسیپٹ آ گیا۔ مکہ کے مشرکوں کے لیے بھی محمد کے نبی ہونے اور مورتیوں کے بجائے صرف اللہ کی عبادت کرنے سے بھی کوئی دقت نہیں تھی، کیونکہ جو پہلے ہی بہت سارے خداؤں میں مان رہے تھے انہیں بھلا محمد کے ایک اور خدا جوڑ دینے سے کیا پریشانی ہوتی، جبکہ وہاں مورتیوں کو نہ پوجنے والا سیکٹ بھی پہلے سے موجود تھا۔ دراصل وہ محمدی تھے جو لوگوں کو فورس کرتے تھے کہ وہ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ان کے معبود اللہ کی عبادت کریں، اور بس اسی پل سے اسلام کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ محمد کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد بن گیا کہ وہ لوگوں کے پاس چھپ چھپ کے جا کر ان سے ملتا، انہیں ڈراتا اور انہیں اسلام قبول کرنے کو کہتا، اور نہ قبول کرنے پر قیامت کے دن ہونے والی دردناک عذاب کی دھمکیاں دیتا۔ یہ نبوت کے شروعاتی 3 سال تھے۔ پہلے تو کسی نے بھی محمد کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیا، کیونکہ محمد کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت نہیں تھا سوائے دھمکیوں کے۔ شروعاتی سالوں میں صرف چند ہی لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور ان کی کہانی جاننے کے بعد یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا۔ شروعاتی سالوں میں جتنے بھی لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، یہ خدیجہ کے بدولت ہی ممکن ہو پایا تھا۔ طبقات میں آتا ہے، نبوت کے شروعاتی 3 سالوں میں محمد نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی، جس کی وجہ سے خدیجہ، علی، ابو بکر اور خدیجہ کے چند نوکر جو اس کے لیے تجارت کا کام کرتے تھے، انہوں نے خدیجہ کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ ان زیادہ تر لوگوں کا اسلام قبول کرنا خدیجہ سے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا۔
जैसे अबू बकर सिर्फ इस वजह से इस्लाम को कबूल कर लेता है क्योंकि मक्का की सबसे जानी मानी औरत खदीजा ने ऐसा किया था। अबू बकर खदीजा की बहुत रेस्पेक्ट किया करता था और जब उसने देखा कि खदीजा ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी आंख बंद करके इस्लाम में दाखिल हो गया, जिसके बाद अबू बकर भी इस्लाम की दावत आगे लोगों को देने लगता है, जिससे कि शुरुआती वक्त में इस्लाम को और फैलने के लिए मदद मिली। जहां खदीजा औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली औरत है, उसी तरह अबू बकर आदमियों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला बन जाता है। इसी के साथ बच्चों में सबसे पहले इस्लाम अली ने एक्सेप्ट किया था। इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि अबू तालिब की कई सारी औलादें थीं और इस वजह से एक ऐसा वक्त आया कि अबू तालिब पर एक बड़ी आर्थिक तंगी आ गई थी, जिस वजह से अबू तालिब के बाकी रिश्तेदारों ने अबू तालिब की औलादों को गोद ले लिया था ताकि इससे उसकी कुछ मदद हो पाए। जैसा कि पिछले एपिसोड से भी हमें पता चलता है कि अबू तालिब का एहसान पहले ही मोहम्मद पर था, क्योंकि मोहम्मद के माँ बाप और दादा के बाद अबू तालिब ने ही मोहम्मद को पाला था। इसलिए अब खदीजा से शादी के बाद मोहम्मद की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने के बाद मोहम्मद ने अली को गोद ले लिया। अली उस वक्त एक बच्चा था और अब क्योंकि अली को गोद ले लिया गया था इसलिए अली ने भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि शिया और सुन्नी मुस्लिम के बीच में इस बात को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि पहले अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया या अली ने, लेकिन हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। खैर, अब देखते हैं जैद के बारे में। जैद इब्न हारिस एक गुलाम बच्चा था जिसे अगवा करके सीरिया के बाजार में बेच दिया गया था और जब इसे गुलाम बनाकर सीरिया से मक्का लाया गया तो खदीजा ने जैद को अपने पास रख लिया और मोहम्मद से शादी के वक्त खदीजा ने इसे मोहम्मद को गिफ्ट के रूप में दे दिया था। इसलिए गुलामों में देखा जाए तो जैद ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अगर शुरुआत में ही मोहम्मद खुलकर इस्लाम का असल चेहरा दिखाते तब कोई भी इस्लाम में शामिल नहीं होता और मोहम्मद को अकेले देखकर उसे रोकना भी आसान होता। जब मोहम्मद ने थोड़े से लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, फिर 3 साल बाद उसे खुलकर इस्लाम की तबलीग करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अब कोई भी नया शख्स लालच में आकर या दबाव में आकर इस्लाम को कबूल करने वाला बाकी नहीं रह गया था। इसलिए मोहम्मद ने अब एलानिया तौर पर इस्लाम को फैलाने का काम शुरू किया। अब मोहम्मद ने अपना पैगाम खुलकर लोगों को बताया कि वो एक नबी है और एक नया मजहब लेकर आया है, इसलिए सबको अब उसकी पैरवी करनी चाहिए। यहाँ इस्लामिक तारीख दानों ने कुछ ऐसे भी किस्से तारीखी किताबों में जोड़ने की कोशिश की है कि अबू लहब यानी मोहम्मद के एक चाचा ने इस्लाम को शुरू से ही फैलने से रोका और मोहम्मद पर जुल्म किए। हालांकि अबू लहब का ऐसा करने के पीछे कोई ख़ास वजह वो नहीं लिख पाए, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये अबू लहब को बुरा दिखाने की कोशिश की गई। और आगे के एपिसोड्स में हम ये भी जानेंगे कि आखिर अबू लहब क्यों इस्लाम से इतनी दुश्मनी करने लगा था। खैर, सच यही है कि वहाँ किसी को भी मोहम्मद के अपने मज़हब के फैलाने से कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि पहले से और भी कई नबी और प्रचारक अपने अपने मज़हब का प्रचार वहाँ पर करते थे, जिनमें से एक से इन्फ्लुएंस होकर खदीजा के कजिन भाई वर्का ने भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था। मक्का के लोगों को तकलीफ हुई तो केवल तब जब मोहम्मद ने अपने मज़हब इस्लाम फैलाने के लिए उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुरू में लोगों ने मोहम्मद की बातों को सीरियसली नहीं लिया और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब मोहम्मद ने देखा कि लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं और उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो लोगों की तवज्जो पाने के लिए उसने उनके देवी देवताओं को गालियां देना शुरू कर दिया। और जैसे ही मोहम्मद ने मक्का वालों की अटेंशन पाने के लिए ऐसा किया, यानी जब उनके मज़हब को झूठा बताया और उनके देवी देवताओं को उल्टा सीधा कहना शुरू किया, तो मक्का के लोगों के लिए ये चीज़ बर्दाश्त के बाहर हो गई। हालांकि तब भी मुशरिकों ने मोहम्मद या उसके साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो खुद मोहम्मद के ही साथी थे जिन्होंने पहले हमले किए। अक्सर इस्लामिक स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि जब मोहम्मद ने पीसफुल इस्लाम की दावत मक्का के लोगों को दी तो वे लोग बिना वजह उनकी जान के दुश्मन बन गए, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ है। जब हम इस्लामिक तारीखी किताबें पढ़ते हैं तब हमें हकीकत ठीक इसके उलट नजर आती है। आइए देखते हैं इन लोगों के बीच हुई सबसे पहली झड़प का वाकया, जिसके बाद मक्का के लोगों को उनका बायकॉट करना पड़ा। इस्लाम के नाम पर पहले खून बहने का वाकया। इब्न हिशाम में आता है, इस्लाम के शुरुआती 3 सालों में मोहम्मद के पैरोकार छुप छुप के नमाज पढ़ा करते थे। ऐसा करने की वजह थी अपनी मजाक बनने से बचने की कोशिश करना, क्योंकि ये भी बाकी लोगों का मजाक उड़ाते थे। खैर, ये लोग मुशरिकों की नज़र से बचने के लिए मक्का की घाटियों में छुप जाते। उस वक्त मोहम्मद का एक साथी जिसका नाम साद इब्न वकास
मुसलमानों की एक जमात के साथ नमाज पढ़ रहा था। इस पर जब मुशरिक लोग इनके पास पहुंचे और इन लोगों के इस तरह से इबादत करने का मजाक बनाया जैसा कि ये लोग इनके देवी देवताओं का मजाक बनाते थे, तो इस पर साद ने गुस्से में आकर एक ऊंट के जबड़े की हड्डी से इनको मारना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि साद ने इन लोगों को जख्मी तक कर दिया। आगे लिखा है कि ये वो पहला खून था जो इस्लाम की राह में बहाया गया था। इसके अलावा एक दलील से ये भी साबित होता है कि मक्का के लोग मोहम्मद और इसके साथियों को इग्नोर किया करते थे और इन लोगों ने इसीलिए उनके मज़हब का मजाक बनाया। बात उस वक्त की है कि जब मोहम्मद और इनके साथियों ने मक्का के बुत परस्तों का मजाक बनाया तो ये लोग सीधे मोहम्मद से लड़ने के बजाय मोहम्मद के चाचा अबू तालिब के पास उनकी शिकायत लेकर गए और कहा कि आपका भतीजा हमारे माबूदों को गालियाँ देता है और हमारे मज़हब को बुरा भला कहता है और ये चीज़ हमारे बर्दाश्त के बाहर है कि हमारे बुज़ुर्गों और हमारे मज़हब को बुरा भला कहा जाए। इस पर अबू तालिब ने मोहम्मद को समझाया कि वो ये सब काम करना बंद कर दें। तो मोहम्मद ने इनसे कहा कि अगर मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दिया जाए तब भी मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा एक दलील से ये बात भी पूरी तरह साफ हो जाती है कि मोहम्मद वाकई में उनके खुदाओं को बुरा भला कहा करते थे और जब मक्का के लोगों ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो चुप नहीं हुए तो वो लोग भी गुस्से में मोहम्मद के खुदा को गालियाँ देना शुरू कर देंगे। इस पर कुरान की एक आयत नाजिल होती है जिसका शान नुज़ूल इस तरह है। अबू जहल मोहम्मद से कहता है कि ए मोहम्मद, तुम जिस तरह हमारे खुदाओं को गालियाँ देते हो और बुरा भला कहते हो बंद कर दो, वरना हम भी तुम्हारे खुदा अल्लाह उसको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। इसके बाद मोहम्मद पर कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह को छोड़कर जिसको वो लोग पुकारते हैं उनको बुरा भला ना कहो, कहीं वो भी बदले में अल्लाह को बुरा भला कहना ना शुरू कर दें। और इस आयत के बाद मोहम्मद ने दूसरे मज़हब के खुदाओं को गालियाँ देना बंद कर दिया। तो इस तरह से खुद इस्लामिक किताबों से ही ये बात साबित होती है कि मोहम्मद ही मक्का के लोगों को परेशान करते थे, ना कि वो लोग मोहम्मद को। और वैसे भी इस्लामिक शरिया के हिसाब से अगर कोई शख्स इस्लाम छोड़ दे या छोड़कर दूसरा मज़हब इख्तियार कर ले तो उसे इस्लामिक शरीयत के हिसाब से मौत की सज़ा है। इस तरह देखा जाए तो अगर मक्का के मुशरिक भी कन्वर्ट हुए मुस्लिम को किसी तरह की सज़ा देते भी थे तब भी इस्लाम की नज़र में इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये बुराई तो सबसे ज़्यादा खुद इस्लाम में ही है। तो ये था इस्लाम एक्सेप्ट करने वाले पहले लोगों का वाकया, जिससे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद साहब को फॉलो करने वाले पहले लोगों ने भी इस्लाम को इसलिए नहीं कबूल किया था कि ये खुदाई फितरत वाला मजहब था, बल्कि ये तो केवल या तो परिवार वाले लोग थे या वो गुलाम लोग जिनके लिए उनके मालिक का हुक्म ही सबसे ऊपर होता था। इस वाक्य से एक बात तो साफ है कि अगर मक्का के मुशरिकों का मजहब भी इस्लाम की तरह ही सख्त होता तो इस्लाम कभी ना फैल पाता। और यही इंसानी फितरत साफ दिखाई देती है। ताकतवर हमेशा कमजोर पर राज करता है और ताकत का जरिया होता है एक जैसी मानसिकता वाले लोगों का इकट्ठा होना। आज बड़े बड़े मजहब इसी फितरत के सहारे चलते हैं और गरीब लोग इन फितरतों में अपना खुदा ढूंढते हैं जो उन्हें गरीबी से निकाले या कम से कम गरीबी के बदले उन्हें झूठी तसल्ली दे। तो आगे आइए और मिलकर इस सिलसिले को तोड़ें जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच को जानकर उसे अपना सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसके आगे का इतिहास लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।